Okay. And I think that it is quite visible to everybody. Okay, all right. Stay on with me. We are going to bring you some facts and figures and statistics. India's women have come a long way, and this bill, in fact, is going to empower them. There is going to be further development. There is going to be inclusivity in governance as well in our country. From the deep deficits in the 1950s to remarkable gains across health, education, and empowerment by 2026. India's sex ratio has improved dramatically from 946 females per 1,000 males in 1951 to 1,020 in 2026, crossing the parity mark for the first time. Among states today, Kerala leads with 1,084, followed by Puducherry, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Haryana, Delhi, Chandigarh and Daman and Diu remain at the bottom. Maternal mortality has plummeted from an estimated 2,000 deaths per lakh live births in 1952 to just 97 in 2026, a historic achievement in maternal health. Kerala reports the lowest MMR at 19, followed by Maharashtra, Telangana and Andhra Pradesh. Assam, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Chhattisgarh still record the highest rates. India's fertility rates have fallen sharply from 6 births per woman in 1952 to just 2 in 2026, now below the replacement level of 2.1. Bihar, Meghalaya and Uttar Pradesh still have higher fertility rates, while Sikkim, Goa and Ladakh record the lowest in the country. Women are marrying later and becoming mothers at a later stage. Average age of marriage has risen from 15.6 years in 1952 to 22.9 years in 2026, and first motherhood from 18 to 22.1 years. Female literacy has jumped from under 9% to 1995 to in 1951 to 81% in 2026. Gross enrollment of girls in primary school now stands at an impressive 104.8%. There's only a tiny fraction completed higher secondary in 1950s. Today, 62.9% of girls finish higher secondary school, and female enrollment in higher education has soared to over 2 crore. Female labour force participation has risen from about 7% in 1952 to 34.4% now. Women now make up 15.4% of the IAS, a big leap from under 1% earlier. From 0 women judges in 1952 to 12.5% today in high courts and Supreme Court, over 11,400 women serve in the armed forces and 78.6% of women now have bank accounts. Women lead 18% of India's unicorns as founders or co-founders. Female directors in companies have now increased to 18.2%, and women owning property or assets now stand at 43.3%. Access to basic dignity has transformed. Only 1% had toilets in 1952. Now 82.5% clean tap water connections have risen from 5% to 78% for women and households. The 2026-27 gender budget has hit a record 5.01 lakh crores. In top ranks, women secured 34 in UPSC, 38 in NEET and 12 in JEE Advanced, clear signs of competitive excellence. I am currently being joined by Ms. Maithili Thakur. She is the BJP MLA from Bihar. Thank you very much, Ms. Thakur, for joining us. And the first question, of course, how important is the 33% reservation for women in Parliament for young women politicians like you? I think 33% reservation for women in politics is very important because this is male-dominated area, which I can feel. क्योंकि मैं खुद अभी एक पॉलिटिकल हिस्सा हूँ, अपने भारत की सेवा करने के लिए मैंने राजनीति का माध्यम चुना है. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये क्षेत्र अभी भी मेल डोमिनेटेड है. हम अपने आसपास ज़्यादा चेहरे देखेंगे तो दे आर मेल्स, और मुझे लगता है विमेन आर इक्वली वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे आर वेरी ओपिनियनेटेड. और मुझे लगता है वो अपनी ड्यूटीज़ को अगर राजनीतिक क्षेत्र में निभाने का प्रयास करेंगे तो ये उनके लिए ही नहीं, समाज के हर एक वर्ग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. क्योंकि जब एक औरत, एक महिला लीड करती है तो समाज के हर एक वर्ग का ध्यान रखती है और बहुत ज़रूरी भी है. In your experience, how difficult was your entry in politics being a young woman?
For me, it was not very difficult because I come from a background where I have a personality. I was in public और मुझे लगता था एक पब्लिक फिगर होने के नाते मुझे उतनी मुसीबत नहीं हुई और मेरा पार्टी ने बहुत साथ दिया और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने वक्त तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि कितनी परेशानी होती है एक चुनाव को लड़ने में और जीतने में। मुझे इस चीज़ का आभास नहीं होने दिया। इसके लिए मैं धन्यवाद अपने प्रधानमंत्री जी को बोलूँगी कि ही मेड अ वे फॉर मी और मुझे रास्ता उन्होंने दिया, रास्ता दिखाया और आसानी से चलने के लिए मुझे मोटिवेट भी किया। लेकिन ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता है। जब कोई एक आम इंसान आ कर के सोचता है, एक आम महिला आकर के सोचती है कि मुझे चुनाव लड़ना है, तो सबसे पहले तो शी हैज़ टू फाइट विथ हर ओन फैमिली, शी हैज़ टू फाइट विथ हर ओन सोसाइटी, उनके आस-पास के लोग, उनसे लड़ना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में और उनके इस विज़नरी आइडिया को हम सभी महिलाएँ पूरे पूरे खुले मन से सम्मान करती हैं और इसका साथ देती हैं। How would more women members of parliament and MLAs help in decision making after the implementation of this historic bill? जैसे कि कल ही हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी का नाम जब प्रस्तावित किया गया, तो उसमें महिलाएँ भी आकर के उन्होंने बोला कि हाँ, हम भी इसका साथ देते हैं। तो महिलाओं का रोल हर जगह ध्यान में रखा जाता है और महिलाएँ एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ सशक्त महिला विधायक हैं, जिनसे मैं खुद इंटरैक्ट करती हूँ। उनसे बात करके मुझे लगता है कि वाह! आई रियली एप्रिशिएट देम और जिस तरीके से वो डील करती हैं। आई फील कि महिलाएँ ऑलरेडी बहुत मज़बूत हैं, बहुत सशक्त हैं, लेकिन उनके लिए रास्तों को आसान बनाया जाए, इसके लिए ये नीति बहुत ज़रूरी है और हमारे प्रधानमंत्री जी पर हम सभी महिलाओं को गर्व है। मैथिली ठाकुर जी, आपको क्या लगता है प्राइम मिनिस्टर ने ये जो इतने सारे स्कीम्स लॉन्च किए हैं, अब 33% परसेंटेज रिजर्वेशन फॉर वुमेन जो कि गवर्नेंस में लाया जा रहा है, उसको इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, इससे महिलाओं का जो स्टेटस है, महिलाओं की जो लाइफस्टाइल है, महिलाओं का जो जीवन है, मुद्रा योजना से लेकर ड्रोन दीदी से लेकर लखपति और अब 33% वुमेन्स रिजर्वेशन, प्राइम मिनिस्टर का कितना बड़ा इसमें हाथ है, कितना बड़ा योगदान है विमेन इम्प्रूवमेंट, विमेन एम्पावरमेंट और विमेन डेवलपमेंट की तरफ? उज्ज्वला गैस योजना, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और मुझे लग रहा है कि आई कांट इवन रिमेंबर कि कितने सारे उनके अलग-अलग योजना आए थे, जिन्होंने खासकर महिलाओं के लिए किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, उनके जीवन को कैसे आसान बना सकते हैं। जैसे कोयला फूँक-फूँक करके हमने भी अपने समय पर देखा है कि वैसे महिलाएँ खाना बनाती है, तो उनके आँख खराब होते थे, उनका साँस खराब होता था। उसको ध्यान में रखते हुए गैस हर जगह पहुँचाए या शौचालय हर जगह बनाए। और मैं तो मेरा सौभाग्य कि मैं ऐसे राज्य से आती हूँ, बिहार राज्य से आती हूँ, जहाँ पर खुद आप 20 साल पहले देखेंगे तो किस प्रकार का बिहार था और नीतीश कुमार जी के शासन काल में उन्होंने कितना सुंदर बिहार को डेवलप किया और महिलाओं के लिए कितना बढ़िया काम किया। और वैसे ही हम अपने प्रधानमंत्री जी को भी जब देखते रहे उनके पूरे जीवन काल में, पूरे राजनैतिक सफर में उन्होंने महिलाओं के लिए जो काम किया है, तो मैं तो दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ। और आने वाले समय में जब ये लागू होगा तो आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इसका बड़ा एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। आपसे आखिरी सवाल मैथिली जी, अब ना ऑपोजिशन पार्टीज अब एकजुट होकर बोल रही हैं कि ये जो विमेंस रिजर्वेशन बिल लाया जा रहा है, इसका इम्प्लीमेंटेशन लाया जा रहा है, इसको ये एक प्रीटेक्स्ट है। जो बीजेपी है वो चाहती है डीलिमिटेशन एक्सरसाइज हो जाए, जल्दी से हो जाए और इसके कारण, डीलिमिटेशन एक्सरसाइज के कारण जो सदर्न स्टेट्स हैं उनको कम सीट्स मिलेंगी, जिसके कारण उनको इलेक्शंस के तहत डिसएडवांटेज होगी, लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन के तहत डिसएडवांटेज होगी। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आई अप्रिशिएट कि वो लोग इतना सोच पा रहे हैं और इतना कुछ कह पा रहे हैं, इतनी ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ हर एक दिन हर एक अलग-अलग चीज़ों को कह पा रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऑपोजिशन अपना काम इस तरीके से करती है। लेकिन जब बात यहाँ पे समाज सुधार की हम कर रहे हैं, हर एक आम इंसान के जीवन को
आसान बनाने की कर रहे हैं। तो आई थिंक हम लोग को ऑपोज़िशन और सत्ता इन से ऊपर आ करके हम लोग को एक अलग स्पेस में आकर के डिसीजन लेने की ज़रूरत है, जहाँ पे हम एक आम इंसान को कैसे लाभान्वित करें, उस पे ज़्यादा फ़ोकस करें, ना कि पार्टी लाइन पे कैसे चलना है, ऑपोज़िशन को ऐसे बोलना है, सत्ता पार्टी को ऐसे बोलना है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पर थोड़ी सेंसिटिव होकर के हमको इस सब से ऊपर उठ कर के फैसला लेना